The annual Hajj pilgrimage in 2024 witnessed the participation of over 1.83 million Muslims, with more than 1.6 million pilgrims arriving from 22 different countries. The sacred city of Mecca saw a significant rise in fatalities this year, with initial reports indicating over 900 deaths, primarily due to extreme heat conditions. Historically, the Hajj pilgrimage, which often attracts over 2 million participants, has faced challenges such as stampedes and epidemics. Pilgrims, many from low-income nations, often arrive with little pre-Hajj health care. The elderly individuals with pre-existing conditions are particularly vulnerable to communicable diseases and other health risks. This year, a severe heat wave gripped Mecca, with temperatures soaring up to 51.8 degrees Celsius. The extreme heat exacerbated the health risk, causing many pilgrims to faint during rituals such as the symbolic stoning of the devil. Preliminary reports suggest that more than 900 pilgrims have died, with Egypt alone accounting for approximately 600 of these deaths. Among the deceased were 68 Indians, with most fatalities attributed to natural causes, old age, and heat-related incidents. In the previous year, over 200 pilgrims, predominantly from Indonesia, were reported dead. A study by the Massachusetts Institute of Technology projects that even with mitigation efforts, the Hajj will experience temperatures exceeding an extreme danger threshold from the years 2047 to 2052 and from 2079 to 2086. Saudi Arabia has invested billions in crowd control and safety measures for the Hajj. However, the sheer number of participants makes ensuring their safety a formidable challenge. Authorities have reported over 1,700 cases of heat exhaustion this year and are working to support affected families and manage the crisis. Videos showing unattended bodies on the streets have highlighted the severity of the situation. According to reports, 68 Indians are among the dead, including 2 pilgrims from Karnataka, 69-year-old Kausar Rukhsana and 54-year-old Ilyas. Speaking to Sala Digital, Sarfaraz Khan, Executive Officer of Karnataka, mentioned that despite detailed explanations of such issues in the Hajj camp, people still tend to panic. सर ये जो खबर है कि इस साल हज में जो है तकरीबन 900 से 1000 लोगों की मौतें हुई हैं और उसमें जो है 68 जो है इंडियंस भी हैं और कर्नाटक से भी 2 लोग जो हैं इसमें हैं। तो इसमें इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम देखिए, ये 2 कर्नाटक के हाजी हैं, तो 16 को दोनों का इंतकाल हुआ है अरफात के मैदान में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ओवर हीट। तो जब हम लोगों ने वहाँ की अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई हाजी सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक बाहर नहीं निकलेगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। बिकॉज इवन वहाँ के पुलिस वाले भी फेंट हो रहे थे बोल के बता रहे थे, जो हाजी उधर थे और खादिमुल हुज्जाज थे उधर, लोगों बता रहे थे। तो ये फिर भी कर्नाटका का जो है मैडम बहुत ही मतलब कम है if you compare with other states। तो क्या वो हम लोग वही बता रहे थे कि आपने इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं दिए और अरेंजमेंट्स लाइक जैसे कहा कि शेल्टर्स वहाँ बना देते तो जब जाते हाजी चल के तो ये आसानी होती थी बोल के हम लोगों ने बताया था उनके। तो बट द प्रॉब्लम इज सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट हैज गॉट देयर ओन, दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी कांट इंटरफेयर विद दैट। सो व्हाटएवर फैसिलिटीज दैट वो लोग दे रहे हैं वही हम फैसिलिटीज को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल हमने ऑनरेबल हज मिनिस्टर को और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को मैंने कहा है कि एक हमारे सीएम साहब से एक लेटर लिखें टू Union Minister for Hajj to bring this notice of the government of Saudi Arabia because they can't, only the government of India should speak उन लोगों को बात करके कि ये जो तकलीफें हुई हैं हाजियों को इस बार इस चीज में, क्योंकि अगर इतनी गर्मी अगर उनको पहले ही पता था तो एटलीस्ट कोई शेल्टर तो बनाते उस जगह जो लोग, विशेष करके मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं वहां से जो आए हैं और उनको 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना था जमरात के लिए। तो उसमें मतलब ये ओवर हीट का ये हुआ है। जनरली क्या होता है कि मैडम हर साल 1-2 हाजी तो इंतकाल होते ही होते हैं हज के सिलसिले में, जो उम्र दराज हैं हज का जो अरकान में जो है उनको स्ट्रेन होता है। तो
ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार जो है हीट वेव से जो इंतकाल इतने सारे लोग हैं, ये इज अ वेरी रेयर फिनोमेनन। बात तो पहले से ही में थी कि इस बार जो है गर्मी का बहुत ज्यादा ये रहेगा, मौसम का असर तो रहेगा। हम लोग, हाँ मैडम, ये हम लोग जो है हमारे हज के ट्रेनिंग में ही बताते हैं हाजियों को। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसी कोई तदाबीर या SOS सॉल्यूशंस जो है आजमीन को सफर से पहले जो ट्रेनिंग देते हैं उस पर बताई जाती है क्या सर? हाँ मैडम, तब बताई जाती है उन लोगों को, हम बताते हैं कि क्या करना है। गर्मी होती है हमेशा, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज हॉटर हॉटेस्ट। कभी भी मतलब वहाँ कूल वेदर होना नामुमकिन है, या बहुत ही दिसंबर में या जनवरी में थोड़ा सा पीरियड में थोड़ा कूल रहता है। तो हम लोग हमेशा हाजियों को बताते हैं कि भी गर्मी होती है, गर्मियों के माहौल में क्या क्या करना है बोल के। हमारा तो 2 दिन कंटिन्यूसली 24 आवर्स की ट्रेनिंग चलती है, हमें 12 आवर्स की ट्रेनिंग चलती है, सुबह से शाम तक, सुबह के 10 से लेकर शाम के 7, 8, 9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। तो कंप्लीट जितने हाजी हैं पूरे स्टेट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इस चीज की, हम समझाते हैं। ये जिस तरह से एक तो एशियन कंट्रीज से जो है, वैसे ही जो है गरीब ममालिक से या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से जो लोग पैसे जोड़ के जमा करके हज को जाते हैं, तो उनके पास पहले से ही कोई ना कोई सेहत का मसला होता है, और उनकी जो है सेहत की देखभाल करने के वसाइल और तरीके उनको नहीं आते हैं करके। तो इसमें भी कमेटी का कोई मैडम नहीं, कमेटी का जैसी वो ये क्या होता है कि मैडम ये सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स वगैरह, हज कमेटी ऑफ इंडिया डिसाइड करती है मैडम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग जो है ना, जो भी हाजी जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है मैडम, उनका मेडिकल टेस्ट होता है, उनको इनोकुलेशंस और वैक्सीनेशन देके ही भेजते हैं हम लोग। एंड इफ समबडी इज नॉट फिट टू ट्रैवल, वी विल नॉट सेंड देम। अगर डॉक्टर सर्टिफाई कर दिया कि ही इज नॉट फिट टू ट्रैवल, वी विल नॉट सेंड देम फॉर हज। तो हम लोग वो करते हैं मैडम। देखिए, अगर कर्नाटका से सिर्फ 2 ही लोग इंतकाल कर गए हैं, तो यू कैन इमेजिन दैट इट इज वी हैव बीन एटलीस्ट बीन एबल टू कन्विंस देम। अगर इफ यू टेक जम्मू कश्मीर में 12 से 13, 14 लोग उन इंतकाल हुए बोल के बता रहे थे, तो फिर भी अगर वैसे तरह देखेंगे तो फिर भी इट इज अ मच बेटर सिचुएशन कंपेयर टू ये 2 लोगों का भी होना नहीं था। बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही ये है क्या बताएं, अफसोस की बात है यहाँ जी। सर, मैं आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि ये जो 5 दिन होते हैं हज के मनासिक के, तो इन 5 दिनों के लिए हाजियों को, मैं जनरली बात कर रही हूँ, सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, इन जनरल भी बात कर रही हूँ, इन 5 दिनों के लिए कोई गाइड क्यों, खुसूसन एशियन कंट्रीज का कोई गाइड क्यों नहीं हो सकता? सर, मैं देखा है मैंने वहाँ पे कि लोग किस तरह से परेशान होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, फिर उनको जो है धूप से परेशानी, भूख से परेशानी भी होती है वहाँ पे। इस बार तो देखा गया है कि हुक्काम ने जो है प्रॉपर रिस्पांस, तो ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि हुक्काम की तरफ से प्रॉपर रिस्पांस तक जो है उनको नहीं मिला है। तो कोई सिर्फ कम से कम इन 5 दिनों के लिए कोई गाइड कमेटी से क्या ये मुमकिन है सर? के मैडम देखिए क्या है, हम लोग पहली चीज तो ये है कि जो कमरे दिए गए थे उसमें 2 बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग्स की बुरी हालत थी, बट ये बिल्डिंग्स जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट की अप्रूव्ड बिल्डिंग्स थी। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि ना, ये बिल्डिंग्स चूज करने में हमारा स्टेट हज कमेटीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ही चूज करती है, बिल्डिंग्स हो या एयरलाइन हो या जो भी हो, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ही करती है। उनकी वो कमेटी होती है, ये कमेटी जाती है जिद्दा, और वहां पर वो लोग, और काउंसिल जनरल की जो कमेटी होती है, ये लोग जाके करते हैं। तो हमको इसमें हम लोग वही बताते हैं कि हमारे हाजी, जो भी हाजी है, एक ही पैसा, जो यूएस का हाजी हो, यूके का हाजी हो, हिंदुस्तान का हाजी हो, तो वही पैसा देगा वो, जितना वट एवर इज द कॉस्ट इज गोइंग टू पे। जब उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलती? तो हम लोगों ने लास्ट में भी हज मिनिस्टर से जब मैंने बात किया था, स्मृति ईरानी मैडम से, मैंने वही कहा था, मैडम जी कि हमारे जो हज कमिटीज हैं, हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि हम जाके अपने हाजियों का मतलब अकोमोडेशन वगैरह का हम लोग इंतजाम करें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने कहा कि गाइड, हम लोग खादिमुल हुज्जाज 35 खादिमुल हुज्जाज हम इस बार भेजे हैं वहाँ पर, जो उनको गाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, वो सब करते हैं। तो ये इसमें एक और चीज तो ऐसा है मैडम कि जैसे हाँ, जरे पेचीदा मसले थे इस बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जरे छोटे छोटे मसलों को भी, जैसे कि किसी ने कहा कि गर्म पानी नहीं आ रहा है कमरे में मेरे, 52 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म पानी कौन पानी नहाएगा मैडम? मैं जस्ट आस्किंग। तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज वेर देयर। तो उन्होंने क्या है कि ना, वीडियो बना दिया और बना के वायरल कर दिया वहां से, क्या ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
जब वहां पर जो है दूसरे हाजी का रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग है उन लोगों का, नहीं सर सिर्फ वो एक कमरे में प्रॉब्लम था, तो ऐसा एक कमरे में एक बिल्डिंग है, तो ऐसा वो दिखा रहे थे कि पूरे जितने कर्नाटका से हाजी गए हैं या हिंदुस्तान से हाजी गए हैं उनकी पूरी हालत यही है। ये भी मतलब गलत है। तो सोशल मीडिया में जो है हर आदमी वीडियो निकालता है और वीडियो भेजता है, अपना ओपिनियन भेजता है, लेकिन वहां पर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं मैडम इस टाइम पे, तो नफ्सा नफ्सी का मामला होता ही है, हज का मामला है, लेकिन कभी भी मतलब इस तरह की तकलीफ कभी भी नहीं हुई थी, ये हम भी मानते हैं कि कमरों की। तो ये बात अक्सर सुनने में आती है हाजियों से, हर साल ये तकरीबन ये बात सुनने में आती है कि जो 5 दिन होते हैं और खुसूसन अरफा के बाद जो मुजदलिफा जाना होता है, फिर वहां से जो जमरात के लिए जाना होता है, इस 3 दिन में जो है बड़ी परेशानी होती है, कोई गाइड नहीं होता, जबकि कुछ कंट्रीज के गाइड उनके हाजियों को, उनके आजमीन को गाइड करते हैं, भले ही वो कितनी ही तादाद में हो। नहीं मैडम, हमारे गाइड नहीं मैडम, हमारे खादिमुल हुज्जाज हैं, गाइड हैं, गाइड रहेंगे मैडम। लेकिन इन दिनों के लिए नहीं होते हैं, ये सुनने में आया है कि इन नहीं दिनों नहीं के नहीं लिए मैडम, नहीं होते क्योंकि हैं, हमारे यहाँ जो जाते हैं नहीं मैडम, क्या है ना, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाजियों की कि अपने खादिमुल हुज्जाज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा है कि देखिए एक खादिमुल हुज्जाज अगर 10,000 लोग हैं तो 400-500 हाजियों के लिए एक खादिमुल हुज्जाज होता है। इन लोगों को चाहिए कि ये उनसे कनेक्ट करें, उनके साथ जाएं, उनके साथ करें, क्योंकि सारे खादिमुल हुज्जाज का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वो हर दिन का रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। यानी ये अपने आदमियों को साथ ले जाते हैं ये खादिम? साथ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो उनका सब इंतजाम है। तो देखिए मैं वही बोलता हूँ ना मैडम, जब हम लोग ट्रेनिंग पे भी आते हैं हाजियों को बोलते हैं कि आप बेहद तवज्जो देके इस ट्रेनिंग को सुनिए जो हम बता रहे हैं। नहीं, ये मसला ये है कि सुनना अलग होता है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना। अग्रीड मैडम, आपने नहीं मैडम, देखिए ऐसा है कि हम लोग प्रैक्टिकलिटी की भी क्या करते हैं, हम लोग 70 to 80% यहाँ पर विथ वीडियोस दिखाते हैं हम लोग कि क्या मामला हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उधर हम लोग अब जब जाते हैं वहां पर, तो हमारे साथ जो होते हैं खादिमुल हुज्जाज जो होते हैं वो भी साथ हमेशा रहते ही रहते हैं मैडम, वो लेके जाते हैं, उनको बताते हैं, और उनके भी जो है ना काउंसिल जनरल की भी जो है, इंडियन काउंसिल जनरल की जो है ये है लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, अफसरान वो भी होते हैं उधर। हज कमेटी के 2 सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उधर, और हज कमेटी के सीईओ भी वहीं होते हैं मैडम। इन सब की अवेलेबिलिटी क्या होती है सर? कोई परेशानी में, कोई मान लीजिए कोई जमीरात के पास जो है गुम हो गया, अटेंड किए हैं ना मैडम, यही लोग तो किए हैं, फिर और कौन किया है मैडम, ये लोग तो किए हैं। जब बॉडी नहीं मिली तो आइडेंटिफाई करके उसको ले जाके को जो भी करना है उन्होंने किया है ना मैडम। उन्होंने तो किया है मैडम। सी व्हाट हैपेंस इज, आप देखिए 1.5 करोड़ लोगों में अब ये हम यही चाहते हैं कि भाई ब्लेम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सऊदी गवर्नमेंट को आप ना उनको ब्लेम करो, क्योंकि ये लोग जो हैं इनको इंतजाम करना चाहिए था। आप हमारे से अच्छा लोकल हालत वो समझते हैं ना कि टेम्परेचर कितने जाने वाला है, कितना आने वाला है। इस साल कंपैरेटिवली क्योंकि अमवात की तादाद ज्यादा है, पिछले साल 200-300 तक होती थी, इस साल तकरीबन 900,000 बताई जा रही, इसीलिए वही तो बोल रहा हूँ, यानी वो था, हाँ सब मिला के वो एक इसका हीट ये सब पूरा मिला के जी, ये पूरा इस तरफ जो इस बार आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत ही गर्मी थी। हमको पहली बार इस बार रमजान में मतलब कभी भी मुझे मेरी जिंदगी में रोजे तकलीफ नहीं लगे, मुझे इस बार पहली बार मुझे लगा कि बहुत बिल्कुल गर्मी से ये परेशानी जो है आइंदा कुछ सालों में भी हो सकती है, जब तक हज मार्च तक होता रहेगा तब तक ये परेशानी होगी। तो इस साल को हम लेसन बनाते हुए अगले साल के लिए कुछ और वही तो इस बार चीज का क्या है कि हम लोग फिर अल्लाह का करम है कि हमारे कर्नाटका के सिर्फ 2 ही हाजियों हुए हैं, तो हमें मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के क्या दुनिया की कोई हाजी को तकलीफ ना हो, लेकिन हम ये भी मैं वही बता रहा हूँ कि ये इसके हज होने के बाद हम हज मिनिस्टर से एक लेटर लिखेंगे कि वहाँ पर एक मीटिंग बुलाएं ये लोग हज कमेटी और इसके और सऊदी अरेबियन एम्बेसडर से, और ये मीटिंग करें वहाँ पर दिल्ली और मुंबई में, और ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम्स पर एड्रेस करने की कोशिश करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम, हम तो टच में ही आई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, थैंक्स।